میں دوزخی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیرے رحم و کرم کے زیادہ محتاج ہیں، آمین۔ پانچواں بیت پڑھنے سے پہلے میری درخواست ہے ان تمام بزرگوں سے جنہوں نے فادر صاحبان کا استقبال کرنا ہے، وہ اپنی اپنی مالا کے ساتھ جو ہے وہ باہر جائیں، اور تاکہ فادر صاحبان کا استقبال کر کے انہیں خیمہ اجتماع میں ہم لے کر آ سکیں۔ جو پادرے پیو نے اپنی آرڈینیشن کے انویٹیشن پر لکھا تھا، میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں یہی عنوان جو ہے آج کی اس دھیان و گیان کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے چنوں گا، اور وہ فریز، وہ جملہ وہ کیا ہے؟ ایک پاکیزہ کاہن اور مکمل ذبیحہ۔ یہ پادرے پیو نے اپنے آرڈینیشن کے انویٹیشن پر جو ہے دعوت نامے پر یہ لکھا کہ ایک پاکیزہ کاہن اور مکمل ذبیحہ۔ جب ہم پادرے پیو کی زندگی پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو مقدس پادرے پیو کا نام فرانسس تھا، فرانسسکو، اور یہ اٹلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں پیٹرچینا میں پیدا ہوئے، اور ان کے والدین بڑے محنتی، ایماندار اور خدا ترس لوگ تھے۔ فرانسس کو بچپن ہی سے اپنا زیادہ وقت دعا اور دھیان و گیان میں گزارنا پسند تھا، اور یہ اکثر جب بھی اسے ڈھونڈنے نکلتے تو یہ گرجا گھر میں پائے جاتے، جہاں یہ ہمیشہ دعا میں وقت گزارتے، دعا میں رہتے، اور ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ٹائم گزارنا انہیں بہت پسند تھا۔ اور 15 برس کی عمر میں انہوں نے کیپچن رہبانہ زندگی میں شمولیت اختیار کر لی، اور 9ویں شعر جب انہوں نے شروع کیا، 9ویں شعر جو ہے ایک ایسا سال ہے کہ جس میں مقدس فرانسس کی ساری زندگی پر، اس کی روحانیت پر جو ہے وہ دھیان و گیان کیا جاتا ہے، اور یہ سارا سال جو ہے اس میں گزارا جاتا ہے، اور فرانسس کا نام بدل کر پیو جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اب فرانسس جو ہے وہ پیو کے نام سے جو ہے وہ جانا جانے لگا۔ خدا کا پادرے پیو پر ایک خاص فضل تھا، کیونکہ وہ گھنٹوں دعا میں یسوع اور فرشتگان اور مقدسین سے باتیں کرتے رہتے تھے، اور اکثر ان کے برادران نے، ان کے بھائیوں نے انہیں یسوع کے ساتھ، فرشتگان کے ساتھ اور مقدسین کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا اور سنا۔ 1910 میں وہ کہانت کی خدمت پر جو ہے انہیں کے لیے مسا کیا گیا، اور جو عنوان میں نے آج کے لیے چنا ہے کہ ایک پاکیزہ کاہن اور مکمل ذبیحہ، یہ اس لیے اس نے اپنے آپ کو جو ہے یہ اپنے لیے یہ الفاظ چنے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ وہ اپنے اور لوگوں کے گناہوں کے لیے ہر روز اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کرتا ہے، تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اس لیے عزیز مومنین، ایک دن پادرے پیو صلیب کے سامنے دعا کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے بدن میں، اپنے ہاتھوں پر، اپنی پسلی میں، اپنے پاؤں میں ایک تبدیلی دیکھی، اور وہ کیا تھی کہ مصلوب یسوع کے 5 زخم جو ہے وہ اس کے جسم پر رونما ہوئے، ظاہر ہوئے، اور بعض اوقات ان زخموں کی اتنی شدت ہوتی کہ پادرے پیو اپنی زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ زندہ نہیں رہیں گے، اب وہ خداوند میں سو جائیں گے، کیونکہ زخموں کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھتے اور کہتے کہ وہ شاید اب جو ہے وہ مر جائیں گے۔
फना हो जाएंगे, खुदा जो है वो खुदावन में सो जाएंगे। एक दिन पादरे पियो खुदावन से दुआ करते हैं और खुदावन से कहते हैं कि ऐ खुदावन, मैं तुझसे एक इल्तिजा करता हूं कि तू इन निशानात को, इन जख्मों को मेरे बदन से गायब कर दे। और पादरे पियो की ये दुआ सुनी गई और उसके जिस्म से, उसके हाथों से, उसकी पसली से, उसके पांव से ये जख्म गायब हो गए, लेकिन जख्मों का जो दर्द था वो खत्म ना हुआ। वो हमेशा इन जख्मों के दर्द को महसूस करते थे। खास तौर पर जुमे के रोज इस दर्द की शिद्दत जो थी वो बढ़ जाती थी। और पोप जॉन पॉल II ने इन्हें 1999 में इन्हें मुबारक करार दिया। इसके बाद उनकी सादा जिंदगी और एतराफ की नेमत से हजारों जिंदगियां जो है तब्दील हुई और पोप जॉन पॉल II ने 2002 में उन्हें मुकद्दस करार दे दिया और अब वो मुकद्दस पादरे पियो के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। अजीज मोमिनीन, मुकद्दस पादरे पियो की जिंदगी में 3 चीजें जो थी वो बड़ी अहम थी, नुमाया थी। और वो कौन सी? पहला, पाक यूखरिस्त। उनकी पाक यूखरिस्त के लिए बड़ी अकीदत थी और जब भी वो यूखरिस्त की कुर्बानी गुजरानते तो वो गहरे ध्यानो ज्ञान में चले जाते और बयान किया जाता है कि वो घंटों घंटों जो है वो ध्यानो ज्ञान में रहते और उनकी ये पाक यूखरिस्त की इबादत जो थी वो बहुत लंबी हो जाती। इसलिए उसमें वो खुदावंत के जख्मों को महसूस करते हैं, खुदावंत की मोहब्बत को महसूस करते हैं। इसलिए उनकी जिंदगी में यूखरिस्त के लिए बड़ी मोहब्बत थी। और दूसरा, वो एतराफ के साक्रामेंट के लिए वो घंटों घंटों जो थे वो बैठे रहते थे। और अगर कोई शख्स अपने गुनाह छुपाता तो पादरे पियो उनके गुनाह उन्हें बता देते और उनके गुनाह बताते, उन्हें झिड़कते कि तुमने ये गुनाह छुपाया है। और वो उनसे भी, उन गुनाहों से जो छुपाते थे उनसे भी वो माफी मांगते थे। इसलिए तराफ जब वो सुनते थे इस बना पर उन्हें रहम का खादम जो है वो कहा गया है कि वो रहम का खादिम है। इसलिए अजीज मोमिनीन, तीसरा, उनकी मुकद्दसा मरियम के लिए बड़ी अकीदत थी और बयान किया जाता है कि उनकी मुकद्दसा मरियम के लिए मोहब्बत, अकीदत जो थी इससे जाहिर होती थी कि वो 36 से 40 घंटे जो थे वो रोजरी पढ़ते थे। और इससे बढ़कर उनकी मुकद्दसा मरियम के लिए अकीदत जाहिर हुई जब लुर्दस के मकाम से इटली, जब मुकद्दसा मरियम का जो है वो स्टैचू लाया गया, मुकद्दसा मरियम का मुजस्मा लाया गया तो जहाज पर लाया गया और जब वहां उसको रखा गया और उसके बाद वापस उसे लुर्दस ले जाना था, तो जब उसे जहाज, उस मुजस्मे को जहाज पर लेकर जा रहे थे तो पादरे पियो ने मां से कहा कि ऐ मां, तू यहां से मुझे शिफा दिए बगैर ही जा रही है। और पादरे पियो ने जब ये दुआ की तो पादरे पियो, जिसे कैंसर था, उसकी सारी बीमारी जो है वो जाती रही। ये मुकद्दसा मरियम से उसकी अकीदत थी, ये मोहब्बत थी कि मुकद्दसा मरियम ने उसकी जिंदगी में मौजज़ा किया और उसे सेहतयाबी जो है वो अता की। अजीज मोमिनीन,
अब हम देखेंगे कि पादरे पियो के कुछ अकवाल हैं जो वो कहते हैं, बयान करते हैं, उसकी सेइंग्स हैं, और वो कहते हैं कि किताबों में खुदा को तलाश करते हैं, दुआ में खुदा को पाते हैं, दुआ खुदा के दिल को खोलने वाली चाबी है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के दिल का दरवाजा खोलते हैं और खुदा हमारी दुआओं को, हमारी इल्तिजाओं को जो है वो सुनता है, उन्हें कबूल करता है और उन्हें पूरा करता है। दूसरा, वो कहते हैं कि दुआ करो, उम्मीद रखो, फिक्रमंद ना हो। फिक्रमंद होना बेकार है। खुदा बहुत मेहरबान और हर दुआ सुनता है। बहुत दफा हम दुआ कर लेते हैं, हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, मुनाजात पेश करते हैं, लेकिन बाद में हम कहते हैं जी चलो जी दुआ कीती ते है वे, जे सुनी गई ते ठीक है, नहीं ते ना सही। तो पादरे पियो कहते हैं कि दुआ करो और फिक्रमंद ना हो। फिक्रमंद होना बेकार है क्योंकि खुदा मेहरबान है और वो हर दुआ को सुनता है। और हम गीत भी गाते हैं कि खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, और खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। जब खुदा हमारे साथ है, जब खुदा हमारी तरफ है, तो हमें किसी चीज का जो है वो डर नहीं होना चाहिए। इसलिए मुकद्दस पादरे पियो कहते हैं कि दुआ करो और उम्मीद रखो और फिक्रमंद ना हो। फिर वो कहता है कि शक करना खुदा की सबसे बड़ी तौहीन है। कि अगर हम मुनाजात भी कर लेने आ, दुआ भी कर लेने आ, अपने काहिना नू दुआ वास्ते भी कह देता है, लेकिन फिर भी साड़ी जिंदगी से शक के ते फिर असी खुदा दी तौहीन करने। इसलिए मुकद्दस पादरे पियो कहते हैं कि शक करना खुदा की सबसे बड़ी तौहीन है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी शक को जगह ना दें। ईमान से भरपूर हो, ईमान से लबरेज हो, तो खुदा आपके ईमान के वसीला से आपको बरकत अता करेगा। इसीलिए बयान किया गया है कि ईमान से सादिक जिंदा रहेगा, ईमान से बरकत मिलेगी, ईमान से जो है वो सादिक जो है वो जिंदगी की भरपूरी पाएगा। फिर पादरे पियो कहते हैं कि हलीमी सच्चाई है और सच्चाई जो है वो आजिज़ी है। फराख दिली वो पैमाना है जिससे खुदा इंसाफ करता है। अगर हम फराख दिल हैं, प्यार करने में, कबूल करने में और दूसरों के साथ इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने में, तो खुदा इंसाफ जो है वो करता है। इसलिए हमें हमेशा फराख दिली के साथ एक दूसरे को कबूल करना है, माफ़ करना है, मोहब्बत करनी है, ताकि हम खुदा जो है वो जो इंसाफ करने वाला है हमें बरकत और फजल जो है वो अता करे। पादरे पियो जो है वो हमें, जो उसके मानने वाले हैं, उसकी अकीदत करने वाले हैं, जो हम मसीही ईमानदार हैं, वो हमें रूहानी जिंदगी गुजारने के कुछ असूल जो हैं वो बयान करते हैं। और वो असूल कौन से हैं? पहला, पादरे पियो कहते हैं कि हर मसीही को हफ्ता में एक बार एतराफ जरूर करना चाहिए। कलीसिया में कहती है कि कम से कम पाशका दे टाइम जरा एतराफ करो, लेकिन पादरे पियो कहते हैं कि एक मसीही को सच्चा और सुच्चा यीशु का शागिर्द बनने के लिए उसे हर हफ्ते में एक बार एतराफ करना जो है वो जरूर है।
फिर पादरी पियो कहते हैं कि हर मसीही को हर रोज पाक शरक्त लेनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। और पादरी पियो कहते हैं कि हम मसीहों को हर रोज पाक शरक्त जो है वो लेनी चाहिए। हर मसीही को कलाम मुकद्दस जो है वो बकायदा जो है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और अजीज मोमिनीन, ये मेरा ईमान है कि जब जब हमारे खानदानों में, हमारे घरानों में खुदा का कलाम खुलता है, खुदा का कलाम पढ़ा जाता है, तो खुदा की बरकतों के खजाने हमारे लिए खुलते हैं। इसलिए हमेशा खुदा का कलाम अपने घरों में खोलें, उसे पढ़ें, क्योंकि ये हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, ये हमारे लिए जिंदगी का कलाम है। क्योंकि पतरस ने, जब यीशु ने तालीम दी तो बहुत सारे शागिर्द कहते हैं कि ये तो सख्त तालीम है, ये कौन सुन सकता है, कौन बर्दाश्त कर सकता है। और लिखा है कि बहुत सारे शागिर्द यीशु को छोड़कर चले गए और खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस कहता है कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। इसलिए ये जिंदगी का कलाम है और इस जिंदगी के कलाम को हमेशा अपने घर में खोलें और इससे बरकत पाएं। और मैंने कहा कि ये मेरा ईमान है कि जब जब आप खुदा का कलाम अपने घरों में खोलेंगे तो खुदा की बरकतों के खजाने आपके लिए खुलेंगे। खुदा अपनी रहमतों के दरवाजे जो है वो आपके लिए खोलेगा। इसके साथ साथ मुकद्दस पादरी पियो कहते हैं कि हर मसीही अपनी दुआया जिंदगी में मजबूत हो। दुआ जो है ये खुदा से बातचीत करने का जरिया है, एक मकालमा है। इसीलिए तसलोनिकियों की कलीसिया के पहले खत में मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि बिला नागा दुआ करो। जब हम बिला नागा दुआ करेंगे तो हमारा ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ रहेगा और खुदा हमें जरूर जो है वो बरकत और फजल भी अता करेगा। मुकद्दस पादरी पियो जो है वो कहते हैं कि अपने ज़मीर का इम्तिहान करें। सोने से पहले अपने ज़मीर का इम्तिहान करें कि मैंने दिन कैसे गुजारा है, कैसे मैंने दूसरों के साथ मैं कैसे मिला हूं, कैसे मैंने उनके साथ बर्ताव किया है। तो पादरी पियो कहते हैं कि अपने ज़मीर का इम्तिहान लें, जिंदगी में जो खामियां हैं उनकी सलाह करें। हम दूसरों की सलाह करते हैं, दूसरों को ठीक करते हैं, लेकिन पादरी पियो आज हमसे कह रहे हैं कि हमने पहले अपनी सलाह करनी है, अपनी जिंदगी पर जो है वो ध्यानो ज्ञान करना है, अपने ज़मीर का इम्तिहान करना है। जो खामियां मेरी जिंदगी में है मैं उनकी सलाह करूं, ना कि मैं दूसरों में कीड़े निकालूं। और अगर मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूं, अपने आप को दुरुस्त करता हूं, तो दूसरे जो है वो खुद जो है वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए अजीज मोमिनीन, आज की जब हमने पहली तिलावत सुनी तो आज की पहली तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि आइंदा से कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मेरे बदन पर यीशु के निशान लगे हुए हैं। अजीज मोमिनीन, मुकद्दस पौलुस रसूल इन निशानात को कैसे बयान करता है? मुकद्दस पौलुस रसूल जहां कहीं गया वहां उसे झूठे उस्तादों का सामना करना पड़ा, जो गैर कौमों के ईमानदारों को जो है वो वर्गलाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये रसूल नहीं, ये खुदा की तरफ से नहीं, और जो फजल का पैगाम ये कहता है ये इसका नहीं है, ये झूठ कहता है। वो शक करते हैं, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल बताता है कि ये पैगाम सिर्फ यही नहीं है जो मैंने तुम्हें सुनाया है, ये पैगाम जो मैंने तुम्हें सुनाया है मैं इसे जिया हूं और
और मैंने इसके वसीले से दुख भी उठाया है। और वो जंजीरों में बांधा गया, उसे कैद खाने में डाला गया, उसे कोड़े मारे गए और उस पर तरह तरह का जो है वो जुल्म किया गया। जब हम निशान का जिक्र सुनते हैं, जिसे जख्म भी कहा गया है, जिसे स्टिग्माटा भी कहा गया है, इसे ये यूनानी जुबान में से जो है इसे लिया गया है। और ये स्टिग्माटा निशान जो है इसे यूं बयान किया जाता है कि जब एक गुलाम अपने मालिक से भागकर कहीं और चला जाता है तो उसे पकड़कर वापस लाया जाता है, और जब उसे वापस लाया जाता है तो उसके माथे पर जो है वो एक निशान लगा दिया जाता है कि अब ये गुलाम हमारा है, अब इसका ताल्लुक हमसे है, इसलिए ये अब और कहीं नहीं जाएगा, बल्कि अब ये गुलाम हमारा है और इसका ताल्लुक जो है वो हमसे है। दूसरा कि जब ये जो फौजियों की कंपनीज होती थी, जब ये किसी इलाके में जाते थे तो इनका जो कमांडर होता था, इनके कमांडर का नाम जो है वो इनके माथों पर लगाया जाता था कि इनका ताल्लुक किस कंपनी से है, इनका कमांडर जो है वो क्या कौन है, और इस तरह उनके माथों पर उनके कमांडर के नाम का टैटू जो है वो लगा दिया जाता था। और ये एशिया माइनर में और रोमी सल्तनत में ये चीजें जो थी आम थी। ये रोमी सल्तनत में और एशिया माइनर में ये चीजें आम थी। जो लिखा है ये मेरी अपनी जिंदगी में हकीकी है। ये मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करता है, जो मेरा जिस्म पड़े वो मेरे जख्मों को जो है वो देख लें, उन्हें देखें। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि जो मैंने दुख उठाए हैं, जो मैंने मुसीबतें सही हैं, मैं जंजीरों में बांधा गया हूं, ये निशान जो मेरे बदन पर लगाए गए हैं ये यीशु पर ईमान लाने के वसीले से लगाए गए हैं। इसलिए वो कहता है कि आइंदा से कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि ये जख्म, ये तकलीफें, ये निशान जो मेरे बदन पर लगाए गए हैं ये यीशु के लिए जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि अब मैं यीशु का हूं। इसलिए वो कहता है कि मेरे बदन पर ये निशान जो है वो लगाए गए हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह जब एक नौजवान खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं नेकी कर सकूं, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उसे कहता है कि जो हुक्म दिए गए हैं उन पर अमल कर। तो वो कहता है कि ये तो मैं करता आया हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों में तकसीम कर। और बयान किया गया है कि जब उसने खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपना सब कुछ बेच डाल, तो वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके से दौलतमंद के गुजर जाने से एहसानतर है, इजी है। जब हम सुई के नाके का जिक्र सुनते हैं, द आई ऑफ द नीडल, और द सुई का नाका जो है इसका जिक्र सुनते हैं, तो हमें यरूशलेम की तरफ जो है वो देखना है कि यरूशलेम का एक फाटक था, और यरूशलेम के फाटक में एक छोटा सा दरवाजा था जिसे सुई का नाका जो है वो कहा गया है कि जब रात को फाटक जो है वो बंद हो जाता था तो वो छोटा दरवाजा जो है वो खोल देते थे ताकि उसमें से आया जाया जा सके। लेकिन जब ताजर ऊंटों पर सामान लेकर आते थे तो वो उस छोटे दरवाजे से ऊंट जो थे वो नहीं गुजर सकते थे। तो वो क्या करते थे कि ऊंट को वहां बैठाते थे और उसके ऊपर से सारा सामान पहले उतारते और ऊंट को जो है वो उस
چھوٹے دروازے سے گزار کر یروشلم کے اندر لے کر جاتے تھے، اور پھر سامان کو باری باری اندر لے کر جاتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لدا ہوا جو اونٹ ہے وہ اس دولت مند کی مانند ہے جس کے پاس بہت ساری دولت ہے۔ اونٹ تو گزر سکتا ہے لیکن دولت مند جو ہے اس دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایک دولت مند جو ہے وہ نہیں گزر سکتا، ایک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے جو ہے وہ گزر سکتا ہے۔ پترس کہتا ہے کہ اے خداوند ہم نے تو سب کچھ چھوڑا ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جس نے میری خاطر سب کچھ چھوڑا ہے اسے آئندہ زندگی میں اس سے زیادہ ملے گا اور اسے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح ہمیں جو ہے وہ اپنے عزیزوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ رد کرنے یا ترک کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح آج ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یسوع کے سچے اور سچے شاگرد بننا ہے، اس کے پیروکار بننا ہے، تو ہمیں انہیں رد نہیں کرنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو رد نہیں کرنا ہے، انہیں ترک نہیں کرنا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مکمل لگاؤ جو ہے وہ یسوع کے ساتھ ہونا ہے۔ ہمارا ہارٹ جو ہے، ہمارا دل جو ہے وہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک میرا پاؤں ایک کشتی میں ہے اور دوسرا دوسری کشتی میں، نہیں، دو کشتیوں کے ہمیں سوار نہیں ہونا ہے کہ ہم نے یسوع کی طرف بھی آنا ہے اور دوسری طرف بھی بھاگنا ہے، نہیں۔ خداوند یسوع مسیح آج ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مکمل لگاؤ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسرا، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو اول درجہ دیں، اول درجہ دیں۔ دوسری چیزیں سیکنڈری ہیں، دوسرے درجے پہ ہیں، لیکن یسوع ہماری زندگی میں اول درجہ رکھے، اولیت اسے ملنی چاہیے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آج ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں۔ تیسرا، خداوند یسوع مسیح آج ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں اور اپنے پیاروں سے خداوند یسوع مسیح کو زیادہ پیار کریں۔ اور چوتھا اور آخری، خداوند یسوع مسیح ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کریں، اپنی مانند پیار کریں۔ تو اس لیے عزیز مومنین، آج جب ہم اس پاک عبادت میں شامل ہیں تو آج کا یہ لتوریہ کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی دعائیہ زندگی میں مضبوط ہوں، خدا کا کلام پڑھیں اور خداوند کی دی ہوئی اس قربانی میں ہمیشہ شامل ہوں تاکہ ہم اس سے زندگی پائیں، کثرت سے پائیں۔ آج میری دعا ہے کہ جب ہم سب اس پاک عبادت میں شامل ہیں تو میری دعا ہے کہ آج کی اس عبادت کے وسیلہ سے، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو، آپ کے خاندانوں کو ڈھیروں اور لاکھوں برکتیں عطا کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔